Well, all set. If A is brother of B, then B is needed not to be brother of A. If A is brother of B, then B is not necessarily brother of A. अगर A B का भाई है तो B A का भाई हो ये जरूरी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल यही बात है। रिश्ता वही, सोच नहीं। लिसन, रावण इज ब्रदर ऑफ शूर्पणखा। रावण इज ब्रदर ऑफ शूर्पणखा, गॉट इट? बट शूर्पणखा इज नॉट ब्रदर ऑफ रावण। हेलो, रावण इज ब्रदर ऑफ शूर्पणखा, but Shurpanakha is not brother of Ravan. I am brother of Shweta, but Shweta is not brother of me. You are brother of your sister, but your sister is not brother of you. That is what symmetricity is all about. So today we are going to talk about symmetric relation. A relation is said to be symmetric if for every A comma B is element of R, there must be B comma A element of R under the same statement, under the same relation. We were talking about X is brother of Y. If a relation in human beings is defined as X is brother of Y, then this relation is not symmetric, because it may happen that X is brother of Y. There may be cases that X is brother of Y, but Y is not brother of X. And it will happen in each and every case whenever we are taking X as a male and Y as a female. So one will be brother of other, but that will not be the brother of this, because a sister cannot be, a lady cannot be a brother of gentleman. So first of all, we must understand conditional statements. If, then, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा. Now we will talk about the validity of conditional statements. Validity means हम चेक करेंगे कि conditional statement कब ट्रू होते हैं और कब नहीं. मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके शुरू करता हूं, क्योंकि conditional statement को समझे बिना we will not be able to reason. Without reasoning, we will not be able to answer the questions. So first of all, we must understand if then, because in the definition of symmetricity, the conditional statement is there. If A is related to B, then B must be related to A. Similarly, when we will be talking about transitivity, if A is related to B and B is related to C, then A must be related to C. So here we have implications. That is conditional statement. Let's now talk about conditional statement. I take a statement, if there is lockdown. If there is lockdown. If P is a statement, if there is a lockdown. Then Q, then I will stay home. If P, then Q. If there is lockdown, then I will stay home. See here. If there is lockdown, this is P. If P, then Q. That is P implies Q. P is our hypothesis. P is our condition. अगर लॉकडाउन है, P is the cause, कारण कि अगर ये हो तो ये होगा. तो इफेक्ट या एक्सपेक्टेशन क्या होगी या कंक्लूजन क्या होगा कि अगर लॉकडाउन है, then I will stay home. अगर हाइपोथेसिस है, if there is a lockdown, this is hypothesis, then the conclusion is I will stay home. This if P, then Q. अगर P है, if A is related to B, then B is related to. If अगर है तो इस बात को समझते हैं. if शब्द को समझ लिया तो आपको पूरा समझ में आ गया. इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. समझ रहे हैं? if वर्ड को ना पकड़ पाने के कारण कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्यों सिमेट्रिक है. हम बात करेंगे, सुनिए.
हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो जब P ट्रू है उस वक्त Q ट्रू हो सकता है, या P तो ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, या फिर ऐसा हो सकता है P फॉल्स है बट Q ट्रू है, या फिर P और Q दोनों फॉल्स है। जब हम कॉइन को भी दो कॉइन को टॉस करते हैं, चार केस आते हैं, हेड 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 टेल, लाइकवाइज ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखते हैं कि P implies Q, if P then Q। मैं बोलूं अगर कि अगर लॉकडाउन है तो मैं घर पे रहूंगा, ये स्टेटमेंट गलत कब होगा? कि अगर लॉकडाउन हो और मैं घर पे ना हूं। कि लॉकडाउन तो है, कॉज तो पैदा हुआ, लॉकडाउन तो है पर इफेक्ट नहीं आया, तो ये गलत होगा। कंडीशन तो थी, कंडीशन लगा दी कि लॉकडाउन है, फिर भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप बाहर ना आए, पूरी ना हो। यानी जब जब भी ऐसा हो कि कंडीशन लग गई देयर इज लॉकडाउन, ये ट्रू है, बट ये अगर फॉल्स हो गया क्यों, कि आप घर पे नहीं हो, इसका मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि लॉकडाउन होगा तो मैं घर में रहूंगा, इफ देयर इज लॉकडाउन आई विल स्टे होम। पर हुआ क्या, लॉकडाउन है और आप घर पर नहीं हो, इस केस में आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बाकी के तीनों केस में आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। कैसे? देखिए, अगर लॉकडाउन है और क्यू भी ट्रू है, यानी आप घर पे रुके, मतलब आपने स्टेटमेंट दिया था अगर लॉकडाउन होगा तो मैं घर पे रुकूंगा, और आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर टिके हुआ। अब लॉकडाउन है ही नहीं। हेलो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कुछ लोग नहीं समझ पाते। भाई लॉकडाउन है ही नहीं तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप इफेक्ट नहीं, जब आपने कॉज ही क्रिएट नहीं किया तो आप इफेक्ट चेक करने कैसे जा सकते हैं? अगर ए का रिलेशन बी से है तो देखना है कि बी का रिलेशन ए से है कि नहीं। आर यू गेटिंग? अगर ए का रिलेशन बी से नहीं है, अगर कोई पेयर 5,7 प्रेजेंट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रखे हैं, अगर हो सिमेट्रिसिटी चेक करनी एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में, टू चेक द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, फॉर क्या होना चाहिए, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन आर, जो आर में हो। अगर ए का बी से हो तो चेक करना है कि बी का ए से है या नहीं। अगर ए का बी से है ही नहीं, भाई लॉकडाउन ही नहीं है, मैं घूम रहा हूं या नहीं घूम रहा हूं। हेलो, आर यू गेटिंग? लॉकडाउन नहीं है, वो कारण, वो कंडीशन, वो कॉज है ही नहीं जो मुझे यहां फर्क पड़े कि मैं घूम रहा हूं बाहर या नहीं घूम रहा हूं। सो अगर ये हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो कंक्लूजन के ट्रू होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है पूरा, यानी इफ पी, ये पूरा इफ देन, ये हमेशा ट्रू होता है अगर ये ही ना हो, ए का बी से ही ना हो तो बी का ए से हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये होना जरूरी है। आपने कहावत सुनी होगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हुआ क्या, राधा ने असंभव शर्त रख दी। राधा को बोला नाचो, तो राधा ने असंभव शर्त रख दी, ऐसी असंभव शर्त जो पूरी ना हो। तो उसे पता है कि ना नौमन तेल होगा ना मुझे नाचना पड़ेगा। ऐसे कैसे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कह रहे आंगन ही टेढ़ा है, अगर आंगन सीधा होता तो मैं नाचते, बट आंगन आपका टेढ़ा है, मैं नहीं नाचूंगी। अब उसका मन हो जाए वो नाच जाए, आंगन टेढ़ा होते वो नहीं, हम वेरीफाई नहीं करेंगे उसको ट्रू ही मानेंगे, क्योंकि उसने कहा अगर सीधा होता ना तो मैं नाचता। यार माइक होता ना तो मैं गाता, पता है कि माइक नहीं है, अगर माइक होता ना तो मैं गाता। अब आपको कौन चेक कर सकता है? पता है सबको माइक नहीं है, भले आप झूठ भी बोल रहे हो, भले आप झूठ भी बोल रहे हो, फिर भी हमें सच मानना पड़ेगा। मतलब अगर कॉज, कंडीशन या हाइपोथेसिस ही नहीं है, अगर ए का रिलेशन बी से नहीं है तो बी का रिलेशन ए से देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में एक भी पेयर नहीं है, हमें क्या चेक करना, जितने भी पेयर प्रेजेंट है उसका रिवर्स पेयर होना चाहिए। अगर रिवर्स पेयर है मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस और क्लियर करते हैं, या अगर इफ बट को एक बार फिर डिस्कस, इफ देन को फिर डिस्कस करना। इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। स्टेटमेंट दिया कि अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे।
स्टेटमेंट गलत कब होगा कि अगर आप पढ़े लेकिन पास नहीं हुए। कॉज तो था, हाइपोथेसिस तो थी, लेकिन आप पास नहीं हुए, तब आप कहोगे सर आपने कहा था अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, देखो आपने गलत बात कही। लेकिन बाकी सब केसेस में जो ये है हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू, तो बाकी सब केसेस में आप पढ़े आप पास हो गए। मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा है, इफ पी देन क्यू। आप पढ़े लेकिन आप पास नहीं हुए, यहां गड़बड़ हो गई। आप नहीं पढ़े पास हो गए, भाई आप कॉज ही क्रिएट नहीं हुआ तो इफेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े पास हो गए, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ये था कि भाई अगर पढ़े तो पास हो गए, अगर पढ़े तो पास हो गए, बिना पढ़े हो गए तो मुझे कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन नहीं है और मैं घूम रहा हूं तो क्या दिक्कत है, और लॉकडाउन है फिर भी मैं घर में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती जब लॉकडाउन तो था लेकिन मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर। हमें ए का बी से अपनी तरफ से नहीं करना कि सर इसमें 1 2 भी नहीं और 2 1 भी नहीं, इसलिए नहीं। अगर 1 2 है ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में तो जरूर 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 वहां पर 2 1 होना चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन। ये हमारा एक सेट है ए बी सी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सी। यहाँ पे 3 3 9 एलिमेंट्स आए, ए बी ए सी, बी ए बी बी, बी सी सी ए सी बी सी सी। यहां पर आप देखिए सिमेट्रिसिटी क्या है, अगर ए का हो तो वापस बी का ए से हो, ये सिमेट्रिक। अगर इसको फोल्ड करें यानी अगर ए बी है तो इसका रिवर्स पेयर, इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर है। ए सी है तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर सी ए होना चाहिए। अगर ए सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी ए को देखने की जरूरत नहीं है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, ये पूरा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं हम कुछ रिलेशंस की जो कि हमने A क्रॉस B पर डिफाइन किए। वेल यहां हम बात करते हैं R4 की। टू चेक द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ रिलेशन गिवन इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट वी नीड इज for every ordered pair present in R, its reverse ordered pair must be there in R. हर एक का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर वहां पर होना चाहिए। R4 में चेक करते हैं ए बी, ओके ए बी का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए, बी सी यहां है तो सी बी है क्या है। ए का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर कौन है, ए। इसका मतलब हर एक एलिमेंट, इफ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर देन ऑब्वियसली वी कैन सी बी कॉमा ए इज देयर। इट मींस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। इसकी बात करें ए का बी से है, वापस बी का ए से है कि नहीं, क्योंकि ए का बी से है तो बी का ए से हो गया। बी का सी से है तो क्या सी का बी से हो गया। ए का ए से है तो वापस ए का ए से, ये सेम है। तो आप ये ना सोचे कि नंबर ऑफ पेयर्स होंगे इवन नंबर में ही होने चाहिए, कि ए का बी से वापस बी का ए से देखेंगे तो वो आएगा ए का सी से तो सी का ए से, मतलब हर बार इवन नंबर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल पेयर है, जो डबलेट्स हैं, वो सिंगल भी हो। फॉर एन एग्जांपल सी सी, ये कैसा है, सिमेट्रिक है। तो यहां पर ये रिलेशन भी कैसा है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो इसमें प्रेजेंट है, हम क्या चेक करेंगे, जो इसमें नहीं है, यूं नहीं कहेंगे कि इसमें ए सी भी नहीं है और सी ए भी नहीं है, हम ये चेक नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी वहां पर है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसकी बात करें ए, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर ए, बी, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी, सी, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर सी, यानी हर एक ordered pair का, for every ordered pair present in R, its reverse ordered pair is present here. That is, if A is related to B, then B is related to A. इसका मतलब ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन
है। सबसे मजेदार बात करते हैं, जो इफ शब्द को इतनी देर हम खींच रहे हैं वो इसलिए, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। मुझे क्या चेक करना था? लॉकडाउन ही नहीं है, इफ कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, इफ ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से है ही नहीं, यहां पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। या इससे देखें कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उनका रिवर्स प्रेजेंट है। जो भी आप बताओ इसमें कौन है, उसका रिवर्स मैं दिखाता हूं आपको। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर से देखते हैं, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा कि ए का बी से होने पे गारंटी हो कि बी का ए से है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, यहां कोई है ही नहीं, ए का बी से है ही नहीं, तो बी का ए से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा कैसा होगा? सिमेट्रिक। इसीलिए हम इफ देन की बात कर रहे थे। इफ देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट, दैट मींस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। अगर होता, जैसे यहां होता ए बी होता, तो जरूर मुझे किसकी जरूरत पड़ती है सिमेट्रिक के लिए? बी ए की। अगर यहां सी बी होता तो जरूर मुझे जरूरत पड़ती बी सी की। यहां कुछ है ही नहीं, तो मुझे किसी भी पेयर की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स फाई इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फाई इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन में क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा। आप देख सकते हैं इसकी मिरर इमेज ये है, सिमेट्रिक है। ए बी तो बी ए, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। मतलब ए क्रॉस बी में सारे ही एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे। दैट मींस ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस रिलेशन हैज इट्स रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर। That is, if you try to find the inverse of that relation, अगर आप इन सब का ऑर्डर चेंज करके जो रिलेशन लिखे उसको बोलते हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होता है? आर इनवर्स में बी कॉमा ए आते हैं। जब भी ए कॉमा बी अगर आर में हो, तो बी कॉमा ए का जो सेट बनता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो उसका इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर दो। तो इसका ऑर्डर चेंज करोगे, ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। इसका ऑर्डर चेंज करोगे, ये सिमेट्रिक है। इसका कुछ है ही नहीं, इसमें ऑर्डर चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर और आर इनवर्स सेम रहेंगे। ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। अब ये देखते हैं, सिर्फ एक ही है सी कॉमा सी। अगर सी का सी से, तो वापस इस सी का सी से है, बिल्कुल है। रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, सी सी का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर सी सी, बी बी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जिसे बोल रहे हैं डबलेट्स, खुद का खुद से रिलेशन जो हो रहा है वो सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है। यानी ये हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए हो, बी बी हो। लेकिन अगर ए बी होगा तो जरूरी होता है, अगर सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिएगा हमें? बी ए। अगर ए सी है तो जरूरी है क्या? सी ए। बी बी है तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर खुद ही है। मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स सिमेट्रिसिटी पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। ये अगर हो तो भी सिमेट्रिक, ये अगर ना हो तो भी रिलेशन सिमेट्रिक। और सबसे मजे की बात कि अगर रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो भी वो सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये गारंटी, ये कभी फेल नहीं हो रही कि अगर ए का बी से है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बी का बी ए से। दैट्स इट। सो एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज 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 अ सिमेट्रिक रिलेशन। वेल, अब हम कुछ रिलेशंस की बात और देख लेते हैं। ए बी बी सी ए सी, ए बी का रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है। एक भी मिल जाए अगर, डिस्प्रूव करने के लिए एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक एग्जांपल मिल जाए कि ए का बी से रिलेशन है बट बी का ए से रिलेशन नहीं है। ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। दैट्स ऑल। एक रिलेशन, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लें जिसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर ना हो, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। शौक बहराइची जी ने बोला है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।
मतलब एक पेयर मिल जाता ना ऐसा जिसका रिवर्स ऑर्डर नहीं है, बात खत्म हो गई, वो बर्बाद। ये सिमेट्रिक नहीं है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखो यहां तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं है, बात ही खत्म। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। दैट्स इट। ये बात थी हमारी रोस्टर फॉर्म में। अब हम बात करें, अगर हमें रूल फॉर्म में दे रखी हो, जनरल फॉर्मेट में रिलेशन दे रखा हो, तो कैसे हो। हमारी बुक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाले। X is wife of Y. If X is wife of Y, then obviously Y is not going to be wife of X. If X is wife of Y, then Y is a female. Then Y cannot be wife of X. That means अगर A का B से है तो B का A से रिलेशन नहीं है. Then Y cannot be wife of X. So it is not symmetric. X is father of Y. If X is father of Y, then Y cannot be the father of X. That means then Y is not related to X under the same relation, under the same condition, under the same statement. Y. कोई खुद का फादर नहीं हो सकता. एक व्यक्ति अगर दूसरे का फादर है, then this cannot be father of this. ब्रदर वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. लेट्स डिस्कस इट अगेन. We started from here. If X is brother of Y, then Y is not necessarily brother of X. अगर हम इसका रिप्लेसमेंट सेट चेंज कर दें, अभी हमने बोला इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये रिलेशन डिफाइन किया. अब ह्यूमन बीइंग्स की जगह कह दें इन द सेट ऑफ जेंट्स, जेंटलमैन्स, इन द सेट ऑफ मैन, that is gentlemen, boys or males, in the set of males. If I define this relation in the set of males, देखिए now it is symmetric. भाई अगर सारे males हैं तो एक गारंटी है, if A is brother of B, then B will obviously be brother of A. There is no way out, कोई चांस ही नहीं है. बट जनरल क्वेश्चन क्या था, इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जो हमने शुरू किया था कि ए बी का भाई हो, तो जरूरी नहीं कि बी ए का भाई हो. क्यों? क्योंकि वहां ह्यूमन बीइंग्स में बात चल रही थी और अभी बात बदल दी थोड़ी सी. अब क्या बात कर रहे हैं, इन द सेट ऑफ जेंटलमैन, इन द सेट ऑफ मेल्स, इन द सेट ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग्स, if I define this relation X is brother of Y, then it is symmetric. Let's make one more change. अगर मैं इसको मेल्स ना रख के ह्यूमन बीइंग्स ही रखूं और मैं चाहता हूं कि रिलेशन मेरा सिमेट्रिक हो जाए इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो मैं थोड़ा सा ब्रदर ना करके X is sibling of, X is सिबलिंग ऑफ Y, जिसको हम बोलते हैं X और Y भाई बहन है. अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं Y सिबलिंग ऑफ X. दैट मींस अगर X Y का सिबलिंग है तो ये गारंटी है कि Y X का सिबलिंग होगा. इसका मतलब X is sibling of Y in the set of human beings is a symmetric relation because it fits on the definition of symmetricity. Definition of symmetricity says if X is related to Y, then Y must be related to X. If there is an ordered pair present X comma Y in the relation, then Y comma X must be there if it is present. And if it is not present any ordered pair, if you talk about null set, if you talk about empty relation, that is always symmetric. बिकॉज वहां गारंटी दे सकते हैं कि अगर ए का बी से है, अगर आंगन सीधा होता तो मैं नाचती, अगर लॉकडाउन होता तो मैं घर में रहता. लॉकडाउन है ही नहीं, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं इस शर्त का. तो इस बात का ध्यान रखें, एम्प्टी रिलेशन हमेशा 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 सिमेट्रिक होता है. वेल, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. X is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y. अगर X Y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो Y X से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता. अगर X 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मान लिया Y है
50 सेंटीमीटर, ठीक है, देन x must be 157. अगर ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, then this cannot be 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो स्मॉलर हुआ. तो if x is 7 सेंटीमीटर टॉलर then y cannot be 7 सेंटीमीटर टॉलर than x. लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं. अगर मैं ये लिखूं द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ x एंड y, द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ x एंड y इज 7. थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज. ये इफ वर्ड जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे. x का y से रिलेशन तभी होगा जब उनकी हाइट का डिफरेंस 7 होगा. तो हो सकता है दो आदमी ऐसा हो जिनकी हाइट का डिफरेंस 7 नहीं है, तो वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होंगे, वो ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं. और अगर वो ऑर्डर पेयर है ही नहीं तो उसका रिवर्स भी नहीं ढूंढना. अब मान लो एक ऑर्डर पेयर बना है, इसका हाइट का डिफरेंस ये x है, कॉमा ये y हो गया, ये a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r हो गया. तो ऑब्वियसली इसका और इसका डिफरेंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, सिर्फ क्या निकाला, डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी हाइट में कितना अंतर है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इसे बोलते हैं. तो अगर ये है 157 और 150 का डिफरेंस 7 है, तो 150, मैं सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंस द एब्सोल्यूट वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ x एंड y इज 7 सेंटीमीटर. उस केस में अगर x का रिलेशन y से है तो ये गारंटी है कि y का रिलेशन भी x से होगा, अगर है तो. और अगर x का y से नहीं है, आप ये नहीं कह सकते सर ये वाला जो है ना, इसमें है ना AB है BC है, CA नहीं है. सर CA नहीं है और AC नहीं है, हम ये नहीं ढूंढेंगे. क्या करना है, if A is related to B, then we are to find whether B is related to A or not. And if you can find a pair A comma B is element of R but B comma is not element of R, then you will say by the method of contradiction, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है. 1000 पेयर्स थे, सबका रिवर्स ऑर्डर मिल रहा था, लेकिन एक ऐसा मिल गया, तो आप सीधा ही कहोगे भाई साहब ये A कॉमा B यहां है लेकिन B कॉमा A इसके लिए नहीं है, इसका रिवर्स पेयर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चंस. X is wife of Y, not symmetric because if X is wife of Y, then Y cannot be wife of X. But if I say X is married to Y, then the same statement can be written as Y is married to X. That is, if X is married to Y, then obviously Y is married to X. This relation is symmetric. This was not. This is when we were talking brotherhood in set of males. If A is brother of B, then obviously B is brother of A because all males are there. But if we talk in human beings, what happens? If A is brother of B, then I am not saying that B is not brother of A. If A is brother of B, then B is not necessarily brother of A. हो भी सकता हो, नहीं भी. होगा कब? जब वो भी बॉय होगा. कब नहीं होगा? जब सेकंड एलिमेंट एक गर्ल या लेडी होगी. I hope the things are clear. If you will focus on the definition, if you understand this is the mantra. आप कहोगे मंत्र मिल गया, बढ़िया है, लेकिन इस मंत्र को सिद्ध कर लें, बहुत जगह लगा के देख लें, सिर्फ मंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ रह जाए डेफिनेशन और आपको समझ में नहीं आए, दैट इज मीनिंगलेस. इसको समझ लें, इस मंत्र का जाप कर लें, इसको सिद्ध कर लें, इतनी बार लगा के देख. अगर ए का बी से तो बी का ए से देखना, यहाँ किसी का है ही नहीं, इसका मतलब डेफिनेशन गलत नहीं हो रही, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है. रिफ्लेक्सिव नहीं है, हम बाद में बात करें. सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है. अगर ए का बी से है तो बी का ए से. अब आप इसमें कहोगे सर इसमें ए बी भी नहीं होगी. अरे हमें क्या मतलब है, इफ लॉकडाउन है तो मुझे बाहर नहीं जाना है. अगर लॉकडाउन नहीं है तो अब मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरा स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि अगर लॉकडाउन होगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो ठीक बात है. मैं लॉकडाउन है तब बाहर नहीं जा रहा हूं, लॉकडाउन नहीं है तो मैं कुछ भी करूं. इस बात को समझें, दिमाग में बिठाएं, यू विल एंजॉय इट. और बात करते हैं द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ x एंड y 7 सेंटीमीटर. वी हैव चेंज दैट क्वेश्चन. सो दिस इज सिमेट्रिक क्योंकि डिफरेंस 7 है. अगर a का b से डिफरेंस 7 है तो b की हाइट का a का हाइट से डिफरेंस 7 है. लेकिन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा. तो रियल नंबर में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर हम ये समझ जाएं कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं. रियल नंबर में ये क्वेश्चन ऐसे बनता है,
In the set of real number, a relation R is defined as A, B, all ordered pairs are there if A minus B is equal to 7. If A minus B is 7, then B minus A will not be equal to 7. जैसे अगर मान लिया 14 minus 7 is 7, but 7 minus 14 is minus 7. So this is not symmetric. But if you apply modulus of this, then obviously if modulus of A minus B is 7, then modulus of B minus A will be equal to 7. अब आप कहोगे सर 2 का 3 से थोड़ी ना डिफरेंस 7 होता है। आप सोच सकते सर 2 का रिलेशन 3 से नहीं है और 3 का, अरे भाई साहब वो कह रहा है अगर 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए। जब 2 का 3 से नहीं है तो 3 के 2 से देखने का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इफ P then Q, if condition then expectation, if hypothesis then conclusion। और ये सिर्फ तभी गलत होता है कि कंडीशन तो फुलफिल हुई, अगर मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ ना पापा तो मैं पास हो जाऊंगा। गड़बड़ क्या कब होगी? अगर मोटरसाइकिल दिला दी और आप पास हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोटरसाइकिल दिलाई और आप पास नहीं हुए तो गड़बड़ है। यानी अगर A का B से है और B का A से नहीं है तब गड़बड़ है। अगर A B ही नहीं है, मोटरसाइकिल ही नहीं दिलाई, तब पास हो ना हो आप जिस दिन पूछेंगे क्या हुआ, मैंने बोला था आपको मोटरसाइकिल दिला दो, आपने नहीं दिलाई। तो सीधी सी बात यह है इफ P then Q को अच्छे से अगर समझ लें तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। बात करते हैं इसकी। इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लिया x की यहां से let's try to write it in roster form। y x plus 3y is 3x plus y is equal to 12। if I try to find the value of y, that is 12 minus 3x, obviously y is equal to 12 minus 3x। if I take x and y are natural numbers, if I take x is equal to 1, it gives y is equal to 12 minus 3, that is 9, which is element of natural number. 1 is related to 9. So if I make the ordered pair, 1 comma 9 will be there in this relation. Again, if I take x is equal to 2, this will give 12 minus 6. X is equal to 2, y is equal to 12 minus 6. 12 minus 6 is 6, which must be element of n because x and y both be natural numbers. So 2 is related to 6. Again, if I take x is equal to 3, this will give me 12 minus 9. 12 minus 9 is equal to 3. So 3 comma 3. If I take x is equal to 4, for x is equal to 4, y is equal to 0, which is not a natural number. So 4 is not related to any number. If I take 5, then y will be negative. 5 3s are 15. If I take x is equal to 5, this will give me negative value. That is not a natural number because the relation is defined on natural numbers. So if I take any value of x which is greater than 4, there will be no y in the codomain which is related to it. तो अब हमारा ये हमने रिलेशन को किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तरीका टू चेक द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ रिलेशन गिवन इन रोस्टर फॉर्म, we will check that for every ordered pair present in the relation, the reverse ordered pair must be there. Here we have 1 comma 9, but 9 comma 1 is not there. So we will write 1 comma 9 is element of R, but 9 comma 1 is not element of R. So the given relation is not a symmetric relation. कि भाई इफ ये था पर हमें रिजल्ट नहीं मिला, कंडीशन लगाई लेकिन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, हाइपोथेसिस थी बट कंक्लूजन नहीं निकला, इस केसेस में सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी लेते 4x plus 3y, लेकिन अगर ऐसा रिलेशन लें, मान लो मैं लिख दूं
3x प्लस वाई, ये लिख दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और नेचुरल नंबर। देखो आराम से इसको क्वेश्चन चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जब नए क्वेश्चंस फेस करें एट द एंड ऑफ द सेशंस, बाद में हम जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे उस वक्त हम सारे क्वेश्चंस को लिख कर देखेंगे कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। आप देखो मिनिमम वैल्यू x की कितनी पुट करोगे, 1, नेचुरल नंबर है ना, 1 पुट करते ही y कैसा आएगा, नेगेटिव, 2 पुट करने पे भी नेगेटिव, यानी कोई भी वैल्यू x, कोई भी दो रिप्लेसमेंट सेट का नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी ये एम्प्टी रिलेशन है। फॉर्मूला वही लिखा, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज किया। अगर एम्प्टी रिलेशन आया तो वो सिमेट्रिक है। तो कुछ भी याद ना करें, समझें इफ देन की कंडीशन को। ये 2-3 जनरल क्वेश्चन है जिसे डिस्कस कर लेना चाहिए ज्योमेट्री से रिलेटेड। वी नो दैट इफ अ लाइन A is perpendicular on B, then B must be perpendicular to A. If a line L1 is parallel to L2, then it is obvious by geometry we know that L2 is parallel to L1. If triangle 1 is congruent to triangle 2, if triangle 1 is in the set of triangles in a plane, if triangle 1 is congruent to triangle 2, the same statement can be then obviously if triangle 1 is congruent to triangle 2, if, then triangle 2 must be congruent to triangle 2 must be congruent to triangle 1. So in the end, let's again talk about these two things, if and roster form. In the roster form, what you need to check is for every ordered pair present in R, there must be its reverse order in the R. And for general proofs, if we can prove for every A is related to B, then B must be related to A. See here, if L1 is parallel to L2, then L2 is obviously be parallel to L1. Then under the given relation, if L1 is related to L2, then L2 is related to L1. Hence the relation is symmetric. लिखना कैसे है इसकी बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस में। अगली टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है ट्रांजिटिव रिलेशन एंड देन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिवाइज इट, try to understand conditional statements, if then, and try to check the relations given in roster form. And remember, phi, that is empty relation, is always symmetric because it fits on the definition of symmetricity. It do not contradict this statement. That's why it is symmetric. Thank you.